is really something which Mumbai requires, having worked for a long time in Mumbai, in dealing with crime and law and order and other aspects of policing. I can tell you that self-defense for women is something which is the order of the day, it is required. We pride ourselves on being the safest city in this country for women. There is a reason for that, and this initiative will add to that. So as always, we are grateful to Ms. Mitha Patel for all that she does for our city and for our police force and for our citizens. She is extremely kind, extremely enthusiastic and generous. I am also grateful to Shri Akshay Kumar for sparing his valuable time to be here, taking part not only in the program but coming before the program and learning a few moves. So we can expect to see some Kolba techniques next movie, I think. So we look forward to that, Mr. Kumar. To our Russian friends here, thank you for coming, thank you for being here and supporting this cause and training us and supporting us in all other ways. With these few words, I would once again thank all of you for inviting me to be a part of this. It's my honor, it's my privilege. Thank you very much, Mukti Foundation. Thank you, Delhi. Good morning. ये समझ में नहीं आ रहा है हिंदी में बात करो, मराठी में बोलो, इंग्लिश में बोलो। मराठी एवढी चांगली आहे, पण तरी सुद्धा ते बोलत नाही. मेरा जिंदगी में एक ही मकसद है. मैं हमेशा अपने आप को एक एक्टर सेकेंडरी समझता हूँ, एक स्टंटमैन, एक मार्शल आर्ट पहला समझता हूँ. ये मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा मकसद है कि मैं चाहता हूं कि हमारे सारे स्कूल के अंदर एक होने कि हर बच्चे को 3 साल के लिए, करीबन 3 साल के लिए मार्शल आर्ट जरूर सीखना चाहिए, चाहे वो लड़का हो लड़की हो. ये मेरी दरख्वास्त है. मैं हमेशा जब भी मौका मैं अपने गवर्नमेंट को दरख्वास्त कि मेरा माइक ठीक हो जाए. Hello. Yeah. Okay. Okay, martial arts should be famous in cricket. That's what I want. It's the most important thing for every man and woman. It's the most important thing. And thank you everybody to take part in it and come in so early this and be part of this lovely, lovely ceremony. Thank you. अक्सर मिडल में प्लीज, मैं यहीं देख पाऊँ. मैं क्या कब बोलूँ? Actually, it's a very big initiative by Mukti Foundation, and it's a very must initiative by Mukti Foundation, and that a woman should always take care of herself. And I think I will go for knife fighting. Very simple reason is because knife fighting एक ऐसी fight है जैसे कि you don't need brute power, you need intellect, you need intellectual thing, you need to be intelligent enough, and I think women can use this
and can be safe from many things. So that's why I'm here to talk about Tolpar, and that is what I am here for the initiative. बोल दिए मैंने जी, अपील यही करना है कि मार्शल आर्ट शुड बी कंपल्सरी इन एवरी स्कूल टू एवरी स्टूडेंट. अक्षय तू आता सांगितलंस की मार्शल आर्टचं शाळेत पण खूप इम्पॉर्टंट आहे, मुलांनाही ते इम्पॉर्टंट झालं पाहिजे प्रत्येक शाळेत, त्याच्याबद्दल प्लीज सांगा. मुलांना आणि मुलींना हेच आहे की इट इज इम्पॉर्टंट. जसं की चायनामध्ये, सिंगापूरमध्ये, मलेशियामध्ये इट्स अ मस्ट थिंग. आई मीन इट्स अ सर्टिफिकेट एवरीबडी शुड हैव. और इस इनिशिएटिव के पीछे आपने कब सोचा? अरे यार वो टिकट कर रहा है. बहुत इम्पोर्टेंट है. इनफैक्ट जिस तरह से हम लोग रो नहीं न्यूज़ सुनते हैं, पेपर में पढ़ते हैं, और आज के ज़माने में इतना है कि पुलिस की महिलाओं को नहीं. अभी हमने जो इनिशिएटिव शुरू किया है विद द हेल्प ऑफ मिस्टर हिमांशु रॉय एंड मिस्टर राकेश मारियाज हेल्प, पुलिस की महिलाओं को हमने प्रशिक्षण शुरू किया है. इसके आगे हम और बढ़ते जाएंगे और महिलाओं को देते जाएंगे. और नॉर्मल हम एक एकेडमी खोल रहे हैं, उसमें भी हम लोग नाइट फाइट का प्रशिक्षण देने वाले हैं. मुंबई पुलिस का हमेशा ये दावा रहा है कि हमारे देश में मुंबई सेफेस्ट सिटी है महिलाओं के लिए. ये स्थान कायम रखने के लिए ऐसे इनिशिएटिव बहुत ज़रूरी है, और मैं स्मिता जी और अक्षय जी का शुक्रगुजार हूँ. उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, सपोर्ट किया, और मुझे लगता है ये बहुत ही वेलकम इनिशिएटिव है और हमारी महिलाएं और भी सेफ रहेंगी. और अक्षय जी बहुत कार्यों में पुलिस के आगे बढ़े. तो मैंने स्पीच में ही कहा कि उन्होंने कुछ रूल्स भी आज सीखे हैं, और मुझे लगता है कि आगे जाके इनके फिल्म्स में हम वह Tolpar अक्षय यहाँ देखिए ना प्लीज. नाइट फाइटिंग से फायदा मिल रहा है. अक्षय जी लवकरच लवकर. अक्षय प्लीज सामने देखिए. आपकी जो नई फिल्म आ रही है इनको कहीं ना अक्षय, इस मार्शल आर्ट का जो मुंबई पुलिस में है कितना फायदा होगा? और आपने ये भी कहा कि क्रिकेट से ज़्यादा हमको इस मार्शल आर्ट को फेमस करना चाहिए. मुझे तो यही लगता है. बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि एक ऐसा ये बिकॉज एक मार्शल आर्ट एक ऐसी डिसिप्लिन है जो हर इंसान के अंदर होनी बहुत ज़रूरी है. सर अभी फिलहाल एक दिन की ट्रेनिंग ये लोग ले रहे हैं, महिलाएं ले रही है, वो वापस हम लोग 2 महीने के बाद लोगों को बुला रहे हैं. तो काफ़ी 3 या 4 दिन की ट्रेनिंग इनफ होती है, जो कि बेसिक ट्रेनिंग होती है. और मैं यहाँ अपॉर्चुनिटी लेना चाहूँगी प्रेस के सामने कि अक्षय जी ने लिटरली इमीडिएटली एग्री किया और हमारे फाउंडेशन को इस कॉज को सपोर्ट किया है. अक्षय हमेशा सपोर्ट करते आए अलग अलग कॉज के लिए. यहाँ मैं ये भी कहना चाहिए कि इसके बाजू में जो हॉस्पिटल है वो अक्षय जी ने बनाया है, और इससे ही पता चलता है कि वो कितना चैरिटी रखते हैं अंदर, अपने अंदर कितनी दया है और कितना चैरिटी माइंडेड है. तो आई एम रियली थैंकफुल अक्षय जी, थैंक यू सो मच. थैंक यू हिमांशु राय सर. मुंबई खाने के मामले किस तरह मार्शल आर्ट से कितना फायदा होगा उन महिलाओं को जिनके साथ छेड़छाड़ होती है? डेफिनेटली फ़ायदा होगा, क्योंकि लॉ ये नहीं कहता कि अगर आपको कोई छेड़े तो आप चुप बैठे और वो सहन करिए. लॉ आपको पूरा अधिकार देता है अपने आप को डिफेंड करने के लिए, मगर डिफेंड करने के लिए एक तरीका भी चाहिए, एक टेक्निक भी चाहिए, एक प्रशिक्षण भी चाहिए. तो आज के इनिशिएटिव से ये प्रशिक्षण और ये ट्रेनिंग और ये अलग टाइप का कॉन्फिडेंस हमारी महिलाओं में आएगा कि वो सही तरह से प्रतिकार कर सके ऐसे नेगेटिव शक्तियों को और ऐसे अत्याचार को. थैंक यू वेरी मच.